Good morning, students. Our today's topic is commensalism. This is the interaction in which one species benefits and the other is neither harmed nor benefited. An orchid growing as an epiphyte on a mango branch. अगर मैंगो की एक ब्रांच के ऊपर एक कोई छोटा पौधा उग जाए दैट इज़ एपीफाइट. इसमें मैंगो ट्री को कोई हार्म नहीं हो रहा, पर एपीफाइट को एक शेल्टर मिल गया, उसको बेनिफिट हो गया. एक स्पीशीज़ को बेनिफिट हो गया और दूसरी को कोई हार्म नहीं हुआ, ना हार्म हुआ ना बेनिफिट हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बार्नेकल ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ द वेल. इसमें वेल को कोई बेनिफिट नहीं है ना नुकसान है, बट बार्नेकल जो हैं ये बार्नेकल्स हैं सम स्पीशीज इन आर्थ्रोपोड्स, फाइलम आर्थ्रोपोड्स का मेंबर है. ये वेल के बैक पे ग्रो कर रहा है. इसमें वेल को कोई हार्म नहीं है ना बेनिफिट है, बट बार्नेकल को एक शेल्टर मिल गया. वाइल नाइदर द मैंगो ट्री नॉर द वेल derives any apparent benefit. Other example of commensalism is the cattle egret. कैटल जब बफेलोज काओ घास खा रही होती हैं फील्ड में, जैसे जैसे वो आगे मूव करती हैं उनके पीछे एक बर्ड इग्रेट ये बर्ड है जो उनके पीछे मूव करता है. कैटल के मूव करने से, ग्रास की मूवमेंट से कुछ इंसेक्ट्स बाहर निकलते हैं जिसको कि इग्रेट खा लेती है. तो इसमें कैटल को कोई हार्म नहीं हो रहा ना बेनिफिट हो रहा है, बट इग्रेट को उसका फूड मिल जाता है. The cattle egret and grazing cattle in a close association, a sight you are most likely to catch if you live in a farmed rural areas, is a classic example of commensalism. The egrets always forage close to where the cattle are grazing, because the cattle, as they move, stir up and flush out from the vegetation insects that otherwise might be difficult for the egrets to find and catch. Another example of commensalism is the interaction between sea anemone that has stinging tentacles and a clownfish. sea anemone और clownfish के बीच की interaction को भी commensalism कहते हैं. sea anemone के tentacles हैं, इसलिए कोई भी एनिमल दूसरा उसके पास नहीं आता और क्लाउन फिश को वहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है अपने प्रीडेटर से. इसमें क्लाउन फिश को बेनिफिट मिल रहा है, पर सी एनिमोन को ना बेनिफिट मिल रहा है और ना ही कोई लॉस है. द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स which stay away from the stinging tentacles. The anemone does not appear to derive any benefits by hosting the clownfish. Next is mutualism. This interaction confers benefits on both the interacting species. म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है. Lichens represent an ultimate mutualistic relationship between the fungi and the photosynthesizing algae और cyanobacteria. सो फंगस और अलगी मिलके आपस में लाइकन बनाते हैं, वो ये है म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल. सिमिलरली द माइकोरहाइजा आर एसोसिएशंस बिटवीन फंगी एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. हायर प्लांट्स की रूट्स में जो फंगी लग जाती है, इस टोटल एसोसिएशन को कहते हैं माइकोरहाइजा. ये भी एक म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल है. The fungi helps the plant in the absorption of essential nutrients from the soil, while the plant in turn provides the fungi with energy-yielding carbohydrates. The most spectacular and evolutionary fascinating examples of mutualisms are found in plant-animal relationships. Plants need the help of animals for pollinating their flowers and dispersing their seeds. Animals obviously have to be paid fees for the services that plants expect from them. Plants offer rewards or fees in the form of pollen and nectar for pollinators and juicy and nutritious fruits
फॉर सीड डिस्पर्सर्स। प्लांट्स और एनिमल्स के रिलेशनशिप को भी म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है। प्लांट्स का पॉलिनेशन हो जाता है, उनके सीड्स ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, और एनिमल को इसमें रिवार्ड मिलता है, या तो नेक्टर मिल रहे हैं या फ्रूट्स खाने को मिल रहे हैं। तो इसमें दोनों को बेनिफिट हो रहा है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म. But the mutually beneficial system should also be safeguarded against cheaters. For example, animals that try to steal nectar without aiding in pollination. कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो पोलन ले लेते हैं पर पॉलिनेशन में हेल्प नहीं कर रहे. In many species of fig trees, there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp. It means that a given fig species can be pollinated only by its partner wasp species and no other species. इसमें एग्जाम्पल है कि फिग जो कि एक पर्टिकुलर एक वास्प की स्पीशीज से ही पॉलिनेटेड होती है और किसी से नहीं. The female wasp uses the fruit not only as an oviposition, that is egg laying site, but uses the developing seeds within the fruit for nourishing its larva. इसमें वास्प उस फिग ट्री के फिग फ्रूट में अपने एग्स को ले करती है, उसके एग वहीं से उसमें न्यूट्रिशन लेते हैं उसके लार्वा, और इस तरह से उसका जो एग्स हैं वो फिग के फ्रूट के अंदर ही ग्रो करते हैं. The wasp pollinates the fig inflorescence while searching for suitable egg laying sites. इसके बदले में वास्प है वो फिग के पोलन्स को ट्रांसफ़र भी कर रही है. इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ पॉलिनेशन, द फिग ऑफर्स द वास्प सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स एज फूड फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वे. फिग वास्प को अपने कुछ डेवलपिंग सीड्स देती है ताकि उसके जो लार्वा ग्रो कर रहे हैं वो उस सीड को अपना फूड की तरह यूज़ कर सकें. Orchids show a bewildering diversity of floral patterns, many of which have evolved to attract the right pollinator insects, bees and bumblebees, and ensure guaranteed pollination by it. प्लांट्स अपने बहुत अच्छे फ्लोरल स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं, पेटल्स, ताकि वो बीज और बम्बल बीज को अट्रैक्ट करें फॉर पॉलिनेशन. Not all orchids offer rewards. The Mediterranean orchid employs sexual deceit to get pollination done by a species of bee. एक ये ऑर्किड है, ऑर्किड में एक फ्लावर की वैरायटी है जो कि सेक्सुअल डिसीट मीन्स धोखा देती है अपने पॉलिनेटर्स को, बी को. उसमें क्या है कि उस फ्लावर की जो एक पेटल है वो एक फीमेल, उसकी जो फीमेल के कलर की है, फीमेल की शेप की है, तो मेल बी उस पेटल को फीमेल कंसिडर करके स्यूडो कॉपुलेट करता है. इस प्रोसेस में वो प्लांट के पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ ट्रांसफ़र कर देता है. वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर्स एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज. उस फ्लावर की एक पेटल उस बी की फीमेल से मिलती जुलती है, साइज़ में, कलर में, कुछ मार्किंग्स भी हैं. द मेल बी इज़ अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव्स एज अ फीमेल. जो मेल बी है वो उसको फीमेल समझती है. स्यूडो कॉपुलेट्स विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज डस्टेड विद पोलन फ्रॉम द फ्लावर. मेल बी इस फ्लावर के पास में आएगी, स्यूडो कॉपुलेट करेगी, और इस प्रोसेस में उसके कुछ पोलन, जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगी तो वो पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र कर देगी. व्हेन दिस सेम बी स्यूडो कॉपुलेट्स विद अनदर फ्लावर, इट ट्रांसफर पोलन्स टू इट and thus pollinates the flower. Here you can see how co-evolution operates. If the female bee's color pattern change even slightly for any reason during evolution, pollination success will be reduced. अगर इसमें उस पेटल का कलर थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो उसमें पॉलिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे.
unless the orchid flower co-evolves to maintain the resemblance of its petal to the female bee. तो इसमें उस ऑर्किड प्लांट को भी अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो उसकी बी के फीमेल बी से रिजेंबल करता रहे. I hope this is clear. With this, we have completed our chapter, that is organisms and population. I hope this is clear. Thank you.